Hello, greetings to one and all. Welcome to the Hindu news analysis of today. This is November 6th, and we are going to discuss the Hindu newspaper. And as you know that today is Sunday, so there are a lot of science related information from where we need to fetch the data required for UPSC. And I haven't demarcated anything as such related to subject wise, so bear with me and stay with the procedure, right? As you know, the national news, the front page tells you that the valley wakes up to nightlife in volatile parts of Srinagar where public life previously halted by sundown. Late night cricket and football tournaments are a big draw now. So in this particular news, the Hindu is trying to tell you that the valley, which was known for a lot of terrorist attacks earlier, the scenario is changing right now. A lot of youngsters are taking up sport activities in the same states, in the same districts where insurgents were present, and during clashes with the protesters and the police officials or the security forces, a lot of youth lost their life. So it is important to note here the role of sports in realigning the youth of the particular state. So this is where you need to focus and understand. Now in this you will also find that the J&K State Sports Council Division Sports Officer Nauzat Farooq, he was also the chief guest of the final match of the tournament, and he exuberantly mentioned that it is very good to see that local people are really enthusiastic. And the T20 tournament, there are including women and children. A lot of them are coming to the states to witness evening cricket matches. Now this is definitely a turnaround situation for Jammu and Kashmir. So if there is a if they how sports can shape up the life, right? Or how sports can create a difference. This is where we can cite an example of Jammu and Kashmir also. Moving further ahead, just a minute. Moving further ahead, that second news is related to by-elections to Mainpuri, 5 assembly seats. So this news is not that really relevant for us because there are a lot of elections going on, and there are proposed elections for Gujarat. The elections are continuing for Himachal Pradesh. So we don't really have to deep dive into this. Uh, Bring back BJP for development. That's what the Prime Minister is telling the Himachal voters. Now, again, this is a very political news, so this is not important. The other is Chandrasekhar targets Kejriwal in a fresh letter. So he's a goon con man, Sukesh Chandrasekhar, and he has written a letter to Vinay Kumar Saxena, who is the Lieutenant Governor of Delhi, saying that Arvind Kejriwal have asked around him to bring around 5-7 people who can fetch around 200 to 500 crore rupees. For what purposes that has not been disclosed. So we'll do not try to read this. This also news is a tragic one, is a sad news that five madrasa students of around 10 to 11 and one teacher drowned while uh, trying to save these drowning children. So these all came for a housewarming party and all that. So from here we can learn the lessons that these uh, basically tells us that the infrastructure that is there is usually ignorant about the mishaps that can take place and how children need to be protected from that. ED questions Sisodia's PA in policy case. So you can note from this particular that it is only the first news that is important for us, whereas rest of the news can be ignored, conveniently ignored. Now, cities' air quality improves slightly to very poor. This is again related to the air quality index of the capital, and air quality index of the capital is going down. So you can note that this is from GS3, right? This is from environment perspective GS3. And when we are talking about
the air quality, few things we need to note in our mind, as this has been repeatedly seen in news. That is, there is a commission for air quality management of National Capital Region. Now, this Commission for Air Quality Management basically assesses the 24-hour average of the air and has a target to reduce particulate matter 2.5 and particulate matter 10 concentration from the air. Now, this particular body is a statutory body. So what we need to remember in with regards to this is that what is the name of the portal on which the data or the air quality data of different cities are stored. So the name of the portal is SAFAR. We need to remember that. So, which is the collecting agency which is responsible for collecting the air quality data. So that is Central Pollution Control Board, CPCB, right? So what you can try to do is you can try to read more about CPCB as well as about SAFAR. You can create a one-page note on the air quality management. Now in this you will find that the air quality has improved from very poor to poor. From very poor to poor, that would be a good sign. But the air is right now, they are saying that if it improves, it would be a very good thing. Now, we need to understand that during winter, this problem in New Delhi increases. Now, this is not new. This is there in the news since past 4-5 years continuously, and a lot of efforts are being taken by the Delhi government to basically ensure that the air quality does not go down. While some of the environmentalists as well as the experts are blaming it on the factor or call, that is stubble burning, but a lot of vehicular air pollution continues to be there in Delhi, which is a problem, and the government should try to manage it. But what we can do right now is we can try to mitigate the health concerns that are there. So you will find that due to the poor visibility, a lot of motor vehicles are getting facing accidents on a daily basis. And in this you will find that there is a machine which pours water so that the dust particles come down. Now poor visibility is not there because of the other pollutants, that is the air pollutants. Poor visibility is because of suspended particulate matter in the air. So this is where we need to focus our attention, that the air quality and the visibility go hand in hand, and a lot of social menace can be created if the air quality is not controlled. Now health concerns are also there. Now in health concerns, the respiratory problems that are there due to air pollution increases, and as per the report, it is telling you that there is a 10% increase in patients with acute respiratory illness post Diwali. So during the festival season also, these problems increase. So these are the factors which is, like highlighting the problems, and the solutions can be the regular solutions that are all actually underway. The best that can be done right now is proper implementation, proper adequate monitoring, and timely decisions that are needed to be taken. Also, a little bit of public awareness will go a long way to reduce the poor quality of air as well as increase visibility in Delhi, right? Now again, you will find that a lot of regular news that are related to Delhi is that the spa employees are dead. So Delhi Commission for Women will be continuously seen in news. Interestingly, this is a shocking news that is coming before us, that National Human Rights Commission has taken a suo motu cognizance of a particular missing report where 5 Uzbekistan women who were alleged to have been working in a sex trafficking racket were rescued, and 7 were rescued and 5 of them are missing. So for international people, those who travel to India,
this is a very bad image that in the capital what we are witnessing is that international tourists are getting involved into sex trafficking. Now, definitely nobody joins a sex trafficking racket by choice. Definitely, there must have been some misguidance. There must have been some, you can say, uh, a manner in which people are, basically pushed into this. So, we need to understand that. बट दिस इज़ नॉट वॉट वी आर गोइंग टू रीड. आप एनएचआरसी के बारे में यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर सकते हो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या रोल होता है. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक तरीके की आपको सिविल कोर्ट जैसी बॉडी दिखाई देगी. एक न्यायालय की तरह होता है जिसके पास क्रिमिनल पावर्स नहीं होती हैं, लेकिन ये सिविल कोर्ट की तरह काम करता है. तो जब हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली आप देखोगे ये 1993 के अराउंड बनाया गया था. ठीक है, तो आपको जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर हो गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया. ये इंपॉर्टेंट 3 नेशनल कमीशंस हैं जो हमें अक्सर न्यूज़ में सुनने में आते रहते हैं. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हमने बेसिकली 1993 में बनाया था. एनसीपीसीआर ये 1992 में बनाया था. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये भी 1992 में बनाया था. इनका पर्पस क्या है? देखिए, ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. किसको प्रोटेक्ट करते हैं? ह्यूमन राइट्स को. तो आप ये सोच रहे होगे कि ये ह्यूमन राइट्स कैसे डिफरेंट है जो हमारे पास ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स हैं. तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट आई थी 1993 में, जिसका ये पर्पस था कि ऐसे अधिकारों को भी प्रोटेक्ट किया जाए जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि राइट टू वर्क. अब राइट टू वर्क जैसी चीज़ है. अब राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट. मान लीजिए ये 2 तरीके के अधिकार हैं जो कि आपको मिल रखे हैं. अब आप बोलोगे कि ये तो आर्टिकल 21 के अंदर आ जाएंगे. आर्टिकल 21 बोले तो राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी. पर राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी के अंदर इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये आ सकते हैं, यानी कि ये डिराइव्ड राइट्स हैं. डिराइव्ड राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं. ये आर्टिकल 21 से निकल के आते हैं. तो ऐसे अधिकारी को बचाने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी आ जाती है. अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या रोल हो सकता है, एक्टिव रोल क्या क्या हो सकता है? तो आप देखोगे कि जहाँ पे भी इंसर्जेंसी है, जैसा कि हमने अभी इंसर्जेंसी वाला एग्जांपल देखा जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे भी इंसर्जेंसी है या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है या कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पे इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा है और वो इमिग्रेशन जो है वो इलीगल तरीके का है. ठीक है, दैट लाइक पीपल आर मूविंग to a safe place in search of asylum so that they can continue their livelihood, है ना, they can live. So in that area it is very important that NHRC tries to bring the central government as well as the state government, increases the accountability of the government by taking suo motu complaints, right? NHRC also can prepare a report as to what has been the status of refugees, those who are coming to India. Now, NHRC has multiple roles. So, NHRC can basically look into the functioning of statutory bodies, non-statutory bodies, governmental bodies, as to how they are functioning. Now, it is very much important for you to remember कि NHRC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ है. पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ना मिलने के कारण किसी भी तरीके से ये नहीं होता कि NHRC का जो अपना स्टेटस है वो कम हो. हाँ, आपको ये ध्यान रखना है NHRC के बारे में. तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे. ये तो एक टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी इसी तरीके की एक बॉडी है और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी इसी तरीके की बॉडी है जो कि हमारे लिए वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट करती है. वल्नरेबल सेक्शंस में अगर हम चिल्ड्रन और वुमेन को इंक्लूड करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये सबके पास भी एक सिविल कोर्ट की पावर है. और ये जब सिविल कोर्ट की पावर है और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं
तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो फंक्शनिंग है, इनका जो फंक्शनिंग होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के फंक्शनिंग के ऊपर अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि ये सरकार के द्वारा जब इनके चेयरमैन चेयरपर्सन चुने जाते हैं तो इनकी फंक्शनिंग जो होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाती है। अब ऐसे में आप एक जेनरिक आंसर अपना प्रिपेयर कर लें, अपना जेनरिक नोट्स प्रिपेयर कर लें और उसमें आप सभी के बारे में, जैसे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। जैसे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हमारे लिए यूपीएससी के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी है। जब आप सिलेबस को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में हमें GS2 में बहुत अच्छे से पढ़ना रहता है। तो वहाँ से हम इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं फर्दर, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनरेगा के ऊपर जो लिमिट लगाई गई थी केरला में वो बढ़ा दी है। एज पर द न्यूज़, केरला द केरला is a state where the size of the panchayats are very big and the population in that particular panchayats are also very huge. So in this in news you will find that the Kerala government has requested the central government to increase the cap. Basically what was the cap? That if any panchayat has more than 20 ongoing works, यानी कि कोई 20 काम किसी पंचायत इलाके में हो रहा है एक साथ एक समय पे, तो मनरेगा के काम को उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। अब केरला के जो वर्कर्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा थी, तो यहाँ पे यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने उस 20 की लिमिट को बढ़ा के 50 कर दिया गया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये लिमिट लगाई क्यों गई, मनरेगा का काम तो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, लिमिट लगाने का कारण बहुत हो सकता है। यहाँ पे हमें करप्शन को भी प्रोटेक्ट करना है। एक सीधा कारण तो यही समझ में आता है कि मनरेगा की जो फंडिंग आती है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, उसका मिसयूज़ हो सकता है, ज़बरदस्ती के काम दिखाए जा सकते हैं। और ज़्यादा काम होने का मतलब विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा साइमल्टेनियस काम होने का ये भी मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी भी कम हो जाती है, क्वालिटी भी गिर जाती है। तो ऐसे में आपसे ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि ये क्यों कराया गया, ये लिमिट क्यों लगाई गई, क्यों हटाई गई। आप मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि सन 2005 में आई थी, और इसमें 100 डेज 100 वर्किंग डेज का गारंटी दिया जाता है। ये किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कराने में एक सहायक की तरह काम कर रहा है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। जब एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो रहा है तो लाइवलीहुड हो रहा है, लाइवलीहुड हो रहा है तो फिर उसके बाद ये उनकी सोशल कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं, इनके हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, और ये एक तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके अपने लिए ही विकास का काम करा रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप फर्दर बढ़ेंगे तो ये देखेंगे आप, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्वाड की जो मलाबार एक्सरसाइज है उसके लिए जापान इस बार होस्ट कर रहा है। तो हमारे जो नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, US के साथ वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। और ये जो क्वाड की जो एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज मालाबार बोला जाता है इसको, ये 1992 में स्टार्ट हुई थी। ये 1992 में स्टार्ट हुई थी और बायलेटरल थी, सिर्फ US और इंडिया के बीच में हुआ करती थी। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट जापान एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ ज्वाइंड इन। Now the timing of this particular naval exercise is very important. The timing is important because this exercise is being conducted at a point of time where a research vessel of China, Yuan Wang 6, has again entered Indian Ocean via Sunda Strait. Now this is important for us to remember because few months back we have heard the news that there was a similar ship, Yuan Wang 5, which entered Sri Lanka's Hambantota port, and it was posing a major strategic threat for Indian naval ships as well as the defense of the Indian Ocean region. Now, this was a perceived threat, not that this ship did something जो कि नुकसान जो कि डायरेक्टली इंडिकेट करे, लेकिन ये शिप करने क्या आया है,
ये यहाँ पे क्वेश्चन वाली बात थी। तो यहाँ पे वापस से यही देखा गया कि इंडियन युआंग वांग 6 जो है वो इंडोनेशिया से निकला है और इंडियन ओशन की तरफ बढ़ रहा है। और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि इन लोग की मुलाकात हो रही है। और साथ में अभी रिसेंटली इंडिया ने नो फ्लाइंग जोन मेंशन किया है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, क्योंकि इंडिया अपनी अग्नि सीरीज की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उसको टेस्ट करने वाला है। तो 2200 किलोमीटर के डिस्टेंस तक इंडिया ने बोला है बे ऑफ बंगाल में कोई फ्लाई नहीं कर सकता है। इंडियन नेवल शिप्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मालाबार एक्सरसाइज में, उनका नाम आप देखिए, शिवालिक है और कमोरता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, मालाबार एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस। और ये आपको अगेन क्वाड के पर्सपेक्टिव से आ चुका है, लेकिन क्वाड कई बार आ चुका है चीज़ों मतलब पूछा जा चुका है। तो चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ क्वाड, क्या क्वाड, आईपी, I2U2 और ये जो आउकस इनिशिएटिव है, जैसे ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ देखने को समझ में आएंगी। आउकस, क्वाड और क्या ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंटिंग है या ये डिफरेंट हैं? किस तरीके से एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव दूसरे इंटरनेशनल इनिशिएटिव के वेटेज को बढ़ाता है या कम करता है, आप इसको एनालाइज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द बायलैटरल रिलेशंस। द अदर न्यूज़ दैट वी हैव इज दैट इंडिया, the ministry has finally approved the sugar exports. Now, why did India impose a ban on the sugar exports? India imposed a ban on the sugar exports so that a lot of sugar, sufficient sugar is available for domestic consumption. Definitely, exporting gives a sense of security to the farmers and the producers. They are able to sell all their produce for exports. बट अगर आप सब कुछ एक्सपोर्ट कर दोगे तो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट का क्या? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश की कि शुगर का जो एक्सपोर्ट है वो लिमिटेड रहे। इसके लिए एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ही अलाउ किया है और बोला है कि शुगर मिल्स जो हैं, जो शुगर मिल्स या तो खुद से एक्सपोर्ट कर सकते हैं या किसी डोमेस्टिक सेल कोटा के साथ स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट and import of certain agriculture product, you need to remember where does India stand, right? So India is the second to third largest sugar exporter in the world, as well as the producer also. And you can also note interestingly with the fact that India has a lot of diabetic problem. So चीनी बहुत ज़्यादा उगाते हैं, इसलिए यहाँ पे चीनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो एक न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस पे एक अच्छी बात ये कही है कि सब चीज़ सील्ड कवर में होना सही नहीं है। तो क्योंकि जिसके विरुद्ध पिटीशन, जो पिटिशनर होता है, जब वो पिटीशन डाल रहा है, याचिका डाल रहा है सरकार के खिलाफ, और सरकार नेशनल सिक्योरिटी का बहाना दे के सब चीज़ें एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा कर रही हैं, जिसमें याचिकाकर्ता को पता ही नहीं है कि जवाब में क्या कह रही है कि केंद्र सरकार, तो ये एक पिटीशन के पूरे प्रोसेस को नॉन ट्रांसपेरेंट कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी जवाब में आप वो इन्फॉर्मेशन हाइड कर दीजिए, हटा दीजिए जो सेंसिटिव है, और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पिटिशनर को मिलनी चाहिए। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बोला है कि पब्लिक बस और मेट्रो ट्रेन सर्विसेज को आपको इंश्योर करना है कि इनके जो रूट्स हैं, जो पब्लिक बस के जो रूट्स हैं वो प्रॉपर इस तरीके से रहें ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो, क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का टॉप 3 बनने वाला है, थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क होने वाला है। So we are going to surpass Japan and South Korea. So this is where you can notice कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ। ये वाली खबर हालांकि काफ़ी अच्छे से कवर की है इन्होंने, हेल्मिंग यूएन इन चाइना। इंडिया के सिद्धार्थ चैटर्जी जो हैं, जो वो यूएन यूनाइटेड नेशंस में चाइना के ऊपर, जो चाइना की जो पोजीशन है, रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं, वो परमानेंट होने वाले हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया LAC टाइज और इंडिया श्रीलंका में जब पीस कीपिंग मिशन हो रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया। अब ये वाली खबर इतना बड़ा दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपको इतना घुस के डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पूछा नहीं जाएगा।
जैसे ये देख रहे हैं आप, 2 चीताज इन कूनो पार्क रिलीज इन एंक्लोजर, ये खबर चली रही है, तो चीता के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। विद द टेम्पल विल राइज, अयोध्या को टूरिज्म व इंटरनेशनल टूरिज्म साइट बनाने का प्लान है, और यहाँ पे एयरपोर्ट बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, और बहुत सारे पुराने एंशेंट जो पॉन्ड्स थे, मिथोलॉजिकल पॉन्ड्स, उनको रिवैम्प किया जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है, बट हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। श्याम सारन नेगी, ये भारत के, आज़ाद भारत के पहले प्रथम रजिस्टर्ड वोटर हैं। उन्होंने अपना आखिरी वोट डाला और उनका निधन हो चुका है, और इसमें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार थे, वो उनके घर गए, और इन्होंने, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जीवनी से आप ये पता कर सकते हैं कि भारत का जो प्रजातंत्र है उसमें लोगों का विश्वास किस तरीके से है, कि हिमाचल प्रदेश में ये 106 साल का व्यक्ति भी अपना वोट डाल के गया। ईरान सेज इट सेंड ड्रोन्स रशिया बिफोर द वॉर बिगैन। नाउ यहाँ पर ईरान और रशिया ने में 2000 ड्रोन्स बेसिकली परचेज़ किए हैं रशिया ने ईरान से, और इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये भी एक न्यूज़ आ रही है। नॉर्थ कोरिया लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स एज यूएस साउथ कोरिया एयरफोर्स एक्सरसाइजेज एंड्स। नाउ दीज आर द न्यूज़ दैट यू कैन कवर, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान को फिर से मिल गई है $13 बिलियन की मदद, और इस बार चाइना और सऊदी अरेबिया ने मदद की है। तो इसमें अराउंड चाइना is providing them $9 billion, whereas $4 billion is coming from Saudi Arabia. Now these are the efforts to bail out basically Pakistan from a financial crisis. So this is where what you can try to read. Now interestingly, ये COP27 अभी हमारा नवंबर में होने वाला है, और यहाँ पे कहा गया है कि वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स जो हैं, ये 1/3 ऑफ देम आर अंडर थ्रेट बिकॉज दे आर मेल्टिंग वेरी फास्ट, एंड मोस्ट ऑफ देम आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. Now these are responsible, if these glaciers melt at a very rapid stage, very rapid pace, what happens? The a lot of areas in the world will submerge. The availability of fresh water will go down. There would be water scarcity, and natural disasters like flooding and people displacement because of rising sea levels will increase. Now these are the this is a study that has been recently conducted by UNESCO and IUCN. Now two important facts that you need to remember from this particular news is, what is the name of the Director General of IUCN? Dr. Bruno Oberle. Dr. Bruno Oberle is the name of the Director General of IUCN, and if they ask you the Director General of UNESCO, you need to know Audrey Azoulay. So these are the two names that you can remember from this, and you can try to read more about the glacial retreat phenomena. So there is a phenomena that has been recently studied by researchers, meteorologists of Indian Meteorological Department for Himalayas, and they are finding that there is a glacial retreat. Now what could be the understanding of glacial retreat? So what is glacial retreat indicates? The glacial retreat indicates the reduced formation of glaciers. So let's say this is a mountain and glaciers are being formed here. So I would just give you an example. Let's say this is a top layer of the glacier that is being formed here, right? So what happens over a period of time is that these researchers basically put poles here to assess कि अगले साल जब हम आएंगे और यहाँ पे अगर हमें पोल मिला तो मतलब ग्लेशियल वैसे ही बना. बट हुआ क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज दिस ग्लेशियर स्टार्ट्स टू रिट्रीट, विच मीन्स ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होने लगता है नीचे की तरफ. यानी कि ये जो ग्लेशियर का जो लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो सिमटने लगता है और ग्लेशियर में ये वाला जो पोल है ये गायब हो जाता है. अब जो पोल गिर जाता है तो यहाँ से जो साइंटिस्ट हैं उनको एक चीज़ पता चलती है कि ग्लेशियर हर साल कुछ मीटर्स पीछे हो रहा है, और इसका मतलब ये है लेस फॉर्मेशन हो रही है आइस की. लेस फॉर्मेशन हो रही है आइस की, ये भी हो सकता है, या रैपिड मेल्टिंग हो रही है, ये भी हो सकता है. तो ये जो ग्लेशियल रिट्रीट का फिनोमेना है ये इंडिकेट हमें करता है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है वो आइस कैप पे फ़र्क डाल रहा है. तो ये वाला जो न्यूज़ है ये आपका इसी से रिलेटेड है.
इंडिया में बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये एक तरह की डिजीज़ मानी जाती है, स्नेक बाइट्स। और यहाँ पे इंडिया में कहा गया कि पूरी दुनिया में 78,600 मौतें होती हैं, तो उसमें से 64,100 मौतें भारत में होती हैं। और इस जगह पे अभी तक किसी भी तरह का काम नहीं किया गया है, ताकि और बेसिकली टारगेट था कि हमें 2030 तक ग्लोबल बर्डन जो है स्नेक बाइट्स का, उसको रिड्यूस कर देना है, आधा कर देना है। लेकिन उस जगह पे कुछ काम होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी एक न्यूज़ है, हालांकि इसके ऊपर कुछ हमें ऐसा प्रीलिम्स के या मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ देखने को नहीं समझ में आता है। सिर्फ इंडिया और सोमालिया की कंडीशन बताई गई है कि दो ऐसे देश हैं जहाँ पे इंसिडेंट्स मतलब 1 लाख में से अराउंड 4-4.5 लोग मर जाते हैं स्नेक बाइट से। यहाँ पे दूसरा जो न्यूज़ है, वैक्सीन ट्रायल सून अमिड फियर ऑफ एबोला वायरस स्प्रेड। अगेन ये एक वायरस से रिलेटेड है, जहाँ पे आप देखेंगे युगांडा में ये जो स्ट्रेन है, सूडान वायरस का स्ट्रेन है इबोला का, वो फिर से बढ़ रहा है और कैपिटल सिटी तक हिट कर गया है। तो ये भी डर है कि डिफरेंट इंटरनेशनल कैपिटल्स में भी पहुंच सकता है। यहाँ पे वैक्सीन की बात की गई है, तो वो हमारे लिए न्यूज़ है, बट देन प्रीलिम्स में वही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमारे लिए कुछ ऐसा निकल के नहीं आता है। ये अच्छी खबर थी, ये आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी हेल्प करेगा कि इंडिया किस तरीके से अपनी चाइल्ड मैरिज को जो प्रॉब्लम है चाइल्ड मैरिज का, वो कम करने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के पॉपुलेशन फंड और यूनिसेफ के जो ग्लोबल प्रोग्राम है टू एंड चाइल्ड मैरिज, वो टॉयलेट टीम भारत आई हुई है और उसके हिसाब से 10 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो चाइल्ड ब्राइड्स बन सकते हैं पैंडेमिक की वजह से, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स भारत में देखने को मिलते हैं। तो अब इससे बहुत सारा प्रॉब्लम है। इससे प्रॉब्लम क्या है, मैटरनल हेल्थ जो है वो इफेक्ट होती है। जो बच्चा पैदा होता है एक यंग लड़की से, वो अंडरवेट पैदा होता है, तो उसमें स्टंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों के अधिकारों के ऊपर बात है, चाइल्ड राइट्स आर गेटिंग अफेक्टेड, है ना। और इसके बाद फिर हम बात कर सकते हैं कि मैटरनल मोर्टालिटी और इन्फेंट मोर्टालिटी के इंस्टेंसेस भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे जब हम स्टैंड लेने की बात करें या मेजर्स लेने की बात करें, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पैराग्राफ दिखाई देगा ये वाला, जहाँ पे आपको स्टेट और सेंटर दोनों के मेजर्स को बताया है। जैसे कि आपको यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के ऊपर बताया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के बारे में बताया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आपको बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम किस तरीके से हेल्प कर रही है। कुछ स्टेट्स की स्कीम है, जैसे कन्याश्री है, जो कि क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट इंसिडेंस माना जाता है चाइल्ड ब्राइड्स का। तो कन्याश्री नाम की योजना फाइनेंशियल एड टू गर्ल्स वांटिंग टू परस्यू हायर स्टडीज़, और रूपश्री स्कीम जो है, जो कि 25,000 तक का वन टाइम पेमेंट देती है, किस तरीके से इनकी हेल्प कर रही है यूपी और अलग अलग जगहों में। आप ये चीज़ें अपने आंसर में लिख सकते हो, अपने नोट्स में लिख सकते हो। यूएस का मिड टर्म इलेक्शंस गेम चेंजर होगा कि नहीं होगा, हमारे लिए किसी मतलब का नहीं है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ रिमोट वोटिंग ऑफ एनआरआईज, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट अभी क्योंकि डिसीजन ले रही है ई पोस्टल वोटिंग फॉर ओवरसीज इलेक्टर्स, तो इसमें आपको मैंने देखा है कि ओरली कई बार क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो ये आप रीड कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। तो ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि नहीं होती हैं, ये आपको देखना है। इसमें ये देखना है क्लाइमेट नेटवर्किंग वाला, ये वाला जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगेगा आपको। अब पढ़ के मतलब इसमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अभी ये मीटिंग होने वाली है। इजिप्ट के शार्म अल शेख में 45,000 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं, गवर्नमेंट लीडर्स टू डिस्कस कार्बन एमिशन, सो यू विल ट्राई टू रीड अबाउट दैट। मूविंग फर्दर अहेड, इसके बाद आपको इंटरनेशनली कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिलती है। तो ये आज का छोटा सा पेपर, मतलब द हिंदू का पेपर है। प्रीलिम्स के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ज़रूर देखा कि NHRC, NCPCR और NCW के ऊपर हम बात कर सकते हैं, और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं। GS3 की तरफ से हमने MG नरेगा के ऊपर बात करी, और GS3 के बाद हमने फिर फाइनली यहाँ पे CAQM और क्लीन एयर क्वालिटी जो है न्यू दिल्ली की, उसके ऊपर चर्चा करी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आज के पेपर से। सो आई होप आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। देखिए, पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियोस आपके लिए सब्सटीट्यूट नहीं हो सकते हैं, ये आप समझिए इस बात को।
आप किसी भी टॉपर के इंटरव्यू को अभी तक उठा के देख लीजिए, जो कि ये कह दे कि वो न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियोस देख देख के सिलेक्शन कराया हो। न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप फिल्टर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं और अच्छी बात है, लेकिन अखबार तो देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से खबरों का आइडिया लेते हुए आप इन खबरों क्या पढ़ना है, क्या इग्नोर करना है, इसका आइडिया पता चल गया होगा आपको। सो दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी signing off from today's newspaper analysis. I hope to see you guys in the next newspaper analysis soon. Take care.